उन्हें नदी से पानी नहीं, रेत चाहिए। उन्हें पहाड़ों से औषधि नहीं, पत्थर चाहिए। उन्हें पेड़ों से छाया नहीं, लकड़ी चाहिए। और उन्हें खेतों से अन्न नहीं, नकदी चाहिए। उलीच ली रेत, तोड़ लिए पत्थर, काट ली लकड़ी और गिन लिए सिक्के। अब वो बेबस भटकते हैं, मृत कुओं में झांकते और खाली नदियों को ताकते। सब बर्तन खाली है, क्योंकि सोच अंडे के लालच में मुर्गी हमने मार डाली है। आइए देखते हैं ये नाटक। मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरा अस्तित्व, मेरी पूरी पहचान सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द टिकी है, पानी। रोज बिना एक दिन की छुट्टी के 24 किलोमीटर चलकर पानी भरकर लाना होता है। चाहे मेरा महीना हो और कितना भी दर्द हो, तब भी अगर रास्ते में टॉयलेट जाना है तो रोक के रखो, या गांव के आवारा लड़कों की बातें सुनो, हद्दी बातें। तो यही काम है मेरा। इसीलिए मेरी शादी हुई थी, पर इसके लिए मेरा जन्म नहीं हुआ था। अगर सावन में बारिश ना हो तो हर जगह सूखा पड़ जाता है, और फिर और दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। लंबा रास्ता मतलब यौन हमले के और भी खतरे। खेती भी अच्छी नहीं होती, अरे खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। अपने बारे में बताऊं तो दिन भर से लौटने के बाद शरीर में कोई जान नहीं बचती। मुझे क्या पसंद था, मैं क्या सोचती थी, खाली समय क्या होता है, मजे करना क्या होता है, सपने देखना क्या होता है, सब भूल चुकी हूँ। सब हर वक्त सिर्फ एक ख्याल कि यहां से भागना है। और इतना डर लगता है कि कभी कभी तो इतनी बेचैनी होती है कि लगता है कि दिमाग कुकर प्रेशर जैसे फट जाएगा। मुंह से आवाज नहीं निकलती, गला सूख जाता है, और निकले भी तो किसको क्या बोलूं, कौन सुनेगा। Hello, hello, hello. This is Sam Banerjee reporting live from my new Instagram handle. How are you guys? Oh, you guys are also here. Well, hello, hi. This is Samiran Banerjee. My friends like to call me Sam. Yeah. My name. Well, my name can be closest, defined to, and my personality can be closest identified to Amir Khan from the movie Dil Chahta Hai. Yeah. You get it right. You know, the man with the goatee. Yeah. Except the fact that I do not sing the song Jaane Kyun Log Pyar Karte Hai. And also, I do not need to take care of my father's business. I'm a startup founder. My latest entrepreneur has been valuated at 130 crores. Yeah. I have thousands of people working for me here every single day at Delhi NCR. My girlfriend, Priya. Yeah, you got it right. The topmost heroine out there in Tollywood. Yeah. So now you know who I am, right? Well, you name any party, you name any party, any big thing that's happening in the town, and I'm there. I'm the first one to reach there, the last one to live. Literally like the soul of the party, just grabbing all the attention, getting all what you need, all the fame, glory, everything. Next time you go anywhere, you will find me. Oh, I hope you don't mind, right? Well, I think
Now that we are talking, it's important to share some stuff, some things about me, to be very honest, despite everything that I've got, all these power, money, fame, everything, I somehow feel that I'm really looking for real people in my life. People who you can call as your, say, 3M friends, in front of whom you can be your vulnerable self. You can completely just express it out. Unfortunately, I do not have them, and I'm still looking for them. Well, the outside me wants to be the next big thing on the internet, literally like influencing people, their lives, their decisions. But the inside me is still looking for a voice of my own. A voice that I can call as my own, my very own. Sometimes I do feel that I should be going to these protests, these rallies, making a noise, creating a statement, making an impact. But then I do feel that I am too powerless to make any real difference. Hence, I decide to do nothing. Nevertheless, I'm very happy with my life. No, seriously. I mean, I've got everything that one aspires for. Money, power, everything, right? Traveling. I think traveling is a great way to get out of everyday hustle in your life. You can literally escape. As they say, what they say that मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता, रुकना नहीं चाहता. ये कपड़ों का रॉ मटेरियल भी ना महंगे पे महंगा होते जा रहा है. पानी का लेवल हर साल कम होते जा रहा है. खेतों का आउटपुट हर साल ऊपर नीचे होते जा रहा है. और इधर मैं हूं दोनों के बीच में फंसा हूं. अगर प्राइसेस बढ़ा दिए तो कस्टमर बेस कम हो जाएगा. अगर प्राइसेस नहीं बढ़ाए तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा. ये साला कस्टमर्स को भी ना रोज बदलने वाला फैशन चाहिए सस्ते में, अपने सोशल मीडिया के लिए, अपने फेसबुक के लिए, अपने ट्विटर के लिए. अरे कहां से लाऊं मैं? उसके ऊपर से these animal rights organization, they keep pestering me. They keep saying that you use animal skins in your fashions and you use child labor. Yeah, of course I do, but everyone else also does it. No, why are you only targeting me? They're worried about everything. Yeah, they're worried about dump yards of clothes worldwide. Dump yards of clothes. अरे get a life. What do you want me to do? हाँ, क्या हम सांस लेना छोड़ दें, हम जीना छोड़ दें, हम पार्टी करना छोड़ दें, हम धंधा चलाना छोड़ दें, खड़े हो जाए बस हम तुम्हारे जैसे पोस्टर लेके सूडो एक्टिविस्ट बनने के लिए? अरे there are lots of bigger problems in life. Focus on them. Focus on them. It's easy to protest when you have nothing to lose. Okay. Well, drinking water is a problem for one, hence I'm starting my grand project. But honestly, otherwise, I don't think climate crisis is something which can touch me easily. I mean, even if water runs out in the city, that never happens in my area. And we have air purifiers installed everywhere. Our homes, workspace, vehicles, everywhere. We are also shifting all our infrastructure to the safer areas and plains. Okay, let me tell you something. My other side project is actually more exciting than my grand project. So my company is buying lands across the country and building storage systems for the next 100 years. With the help of this government, we are changing the course of the rivers to store this drinking water for people like us. And for the rest of the Janta, we have this water made by my company out of sweat, urine, and tears
but a premium product. You see, I'll tell you all about it. Doesn't it sound exciting? We brought this government to power just for this. The only worry is how to buy and manage cheap labor. I mean, if the conditions worsen, where am I supposed to find workers from? That's why I'm trying to work on developing machines which can replace humans and minimize having workers. 24 मार्च 2020 भारत में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। विश्वास करो ना दादा, उस दिन के बाद बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी एकदम बदल गया, पूरा बदल गया। हम गए थे मालिक के घर थोड़ा सा पैसा मांगने। हमको भी घर जाना था, पर मालिक साला पहले ही खुद भाग गया। दादा समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर से माँ का रोता हुआ चेहरा देख के ऐसा लगा कि आप कुछ भी हो जाए, आप वापस घर जाना, किसी भी हालत में आप वापस घर जाना। 1230 किलोमीटर दादा, 1230 किलोमीटर चलने के बाद फिर जाके अपना घर पहुंचे हम। 1230 किलोमीटर। कभी छोटे छोटे रास्तों से जाते थे कि कहीं पुलिस पकड़ के हमें डंडा ना कर दे। कभी कभी कोई ढाबा वाले को रोक के बोलते थे कि दादा एक खावा दे, बहुत भूख लगा है। कभी ट्रक वाले को रोक के बोलते थे कि दादा हमें सामने तक छोड़ दीजिए, हमें अब तक घर जाना है। 1230 किलोमीटर। अरे लीजिए यार, बात में मैंने अपने आप को परिचित करना भूल गया। नमस्कार, my name is Gopal. My friends like to call me Gopu. I know English. I'm class 10 pass. I talk English. I walk English. I am full English. बस 3 ही महीने हुए थे कि मैं दिल्ली गया था और सब कुछ बदल गया था, सब कुछ। पर एक बात बताए आपको, आज 2 साल बाद जब सब कुछ ठीक हो गया है ना, सब कुछ ठीक हो गया है, वापस जाने का मन नहीं करता। अब लगता है जो भी करना है यहाँ करना है, अपने लोगों के बीच करना है, अपने गांव में रह के करना है। नहीं करता वापस जाने का मन, बस नहीं करता। आप सब जहाँ मुंह ढक के खड़े हैं ना, यही मेरा घर है और कोयला खोदना मेरा काम। पीछे बस्ती दिख रही है हमारी, पहले ऐसी नहीं थी। घना जंगल था, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, कुछ जानवर दोस्त भी थे। एक दिन बड़ी बड़ी गाड़ियां आई, कुछ लोग आए और सब खत्म कर दिया। हमारे गांव वालों को मारा और औरतों के साथ जबरदस्ती भी की। तब से मैं, माँ, बाबा, मेरा भाई चिक्की और कुछ पुराने पड़ोसी यही तंबू लगा के रहने लगे। हम भी बाकियों के साथ गांव छोड़ के जाने वाले थे, पर कुछ बाबू लोगों ने बताया यहाँ कोयले का काम फिर चालू करेंगे, खूब पैसा भी देंगे। 10 साल से सब कुछ बंद था ना। मेरी स्कूल की सहेली बताती है यहाँ काम करना गैर कानूनी है, पर हमें तो कुछ और आता ही नहीं। वो सरकारी बाबुओं को देख के डर जरूर लगता है, पर काम ठीक से करो तो कुछ नहीं बोलते। आप ही बताओ,
खाना मिलना जरूरी है या एक बंजर बस्ती में बेमतलब के नियम मानना? अरे हम पागल है जो इतने पैसों को ना बोल दे। गैर कानूनी। हाँ। माँ की आंखें चली गई। बाबा बूढ़े हो रहे हैं। भाई की जिम्मेदारी भी तो मेरे ऊपर है। स्कूल जाना है। वो कोयले के खान के पास ना एक नलके से हम पीने का पानी भरते हैं। आजकल वहां का पानी बहुत खराब आ रहा है। यहाँ ठंड और गर्मी दोनों ही बहुत तेज पड़ने लगी है, पर हमारे पास ना कंबल है ना पंखा। बहुत दिक्कत होती है। पहले सिर्फ कोयले का खान धुआं से भरा होता था, अब तो पूरा शहर ही धुआं धुआं हो चुका है। अगर मेरा बस चलता, मैं ये सब कुछ छोड़ के गाड़ी वाली दीदी के साथ चली जाती। रोज सुबह जब काम पर आती हूँ, ठीक 8 बजे एक गाड़ी यहीं से गुजरती है। कोयले के बीच से चमकती हुई सफेद रंग की गाड़ी। गाड़ी एक दीदी चलाती है। सुंदर काला चश्मा, घड़ी, रोज नए कपड़े। मैं उनको बड़े गौर से देखती हूँ। उनकी गाड़ी मुझे दूर से नजर आते ही मैं दौड़ते दौड़ते सड़क पर खड़ी हो जाती हूँ। और जब तक गाड़ी आंखों के सामने से गायब नहीं होती, मैं हिलती नहीं। वो मुझे देख के मुस्कुराती है और मैं उन्हें देख के मुस्कुराती हूँ। मुझे उनकी जिंदगी जीनी है। आखिर यहाँ रखा ही क्या है? हाथ रगड़ते रगड़ते खून निकल जाए, पर कोयला नहीं मिटता। अब ये कोयला ही मेरा शरीर है। अच्छा, दीदी ने कभी धूल मिट्टी छुआ होगा क्या? गाड़ी के कांच ने तो उन्हें हवा की महक से भी बचा के रखा है। रोज नए कपड़े कहाँ से लाती होंगी? मेरे पास तो बस 4 जोड़ी है और एक यूनिफॉर्म जो टीचर ने दिया था। आजकल ना मुझे स्कूल में एकदम पीछे बिठाते हैं। 2 लड़की मुझे कोरोना बोल के चिढ़ा रही थी। वो क्या होता है? मुझे लगता है उन्हें मेरी खांसी से दिक्कत है। पर खांसी की बीमारी तो यहाँ काम करके मिली है, उससे दूसरों की परेशानी होने लगी। आंखें भी कमजोर हो गई है। पूरे पूरे शरीर में दाना है, जलन होती है। जो कमाती हूँ वो 2 वक्त के खाने में निकल जाता है। दवाई भी नहीं ले पाती। अच्छा, दीदी बीमार होती है तो वो डॉक्टर के पास जाती होंगी ना? उनसे पूछो थोड़ी दवाई बची हो तो मुझे दे दे। पर वो मुझसे क्यों बात करेंगी? हम तो गंदगी पैदा करने वाले लोग हैं ना। अच्छा, जो लोग धूल मिट्टी देखकर बड़े हुए हैं, उनको इस खंडर से गुजरते हुए कैसा महसूस होता होगा? क्या किसी दिन मैं बन पाऊंगी कोयले के बीच से गुजरती हुई एक खूबसूरत सी उम्मीद? After Elon Musk of it, all of our investors and employees are assured that our business is in safe hands, in my hands. I can take our brand name to such a level that even my father couldn't touch it. Oh yes, I was a gold medalist in MBA from a top Ivy League college. Personally, contrary to what most people believe, being an independent thinking woman doesn't mean that I don't love my family. I married the guy who supports my business, and in the next year, we'll have kids. I was the 4th daughter of my parents. They always wanted to have a son who could take their business forward. All my elder sisters have been married in good families. My father
father wanted one of my sister's husbands as the heir to his business empire. But I stopped him. I made him see what I am capable of, and he chose me as the success. I was never like my mother and sisters. Rather, I always emulated my father, always staying calm, even in difficult situations, and thinking rationally and practically. I have the vision, and I will do whatever it takes to achieve my vision. I never take no for an answer. That's me, Monisha. So, are you ready to hear about my exciting plan? The project that my company is currently working on is to harvest water which human bodies release, like sweat, urine, and tears. Wait, let me tell you, water is soon going to be more precious and valuable than gold, and even, I dare say, oil. See, I'm thinking of the future. I like to stay ahead in time. The idea is to develop a construction material which requires workers to work in a very hot environment, which will generate a lot of sweat. The material that we produce is one. The other premium product would be water. Yes, you heard it right. So by capturing, processing, and storing the sweat of the working bodies, I'm going to create a brand of luxury and premium drinking water. Is it so hard to guess what my aim in life is? I am a brand and I want to be known for all the right reasons. Being a popular face is just the beginning of my era. My parents really own Goa. It's a family legacy. While the mining operations were banned in Goa, my parents working on more to expand the business. And now, when the old opportunities are back, they expect me to take it forward. But seriously, why would I want to supervise a pile of stinking infectious ash? Ew! I am Alina Fernandez. All my friends wanted to become models, while I worked hard to create a social media family of my own. From first skincare routine on Instagram to 3 million followers. It's no joke, okay? Now people want to know what I'm wearing, what I'm eating, when I'm traveling next, and so much more. It's like I'm living to make them dream and aspire in their own lives. My work is to create new content 24/7. But now there are no green spots left for me to shoot my videos. I have to travel through that stinking infectious coal mine to reach the other part of the town to find an untouched virgin beautiful green land. It spoils my updates, delays my routine, and most importantly, that polluted air will destroy my career by ruining my face. I can't. I hate it. My life is so tough, you see. Well, life in that coal mine is pathetic. People over there look no less than horror story characters. Ugly, dirty, hungry, scary. I think someday I just have to share my collaborative products with them. The only interesting thing there is the little mining girl running towards my car every day during my visit. Whenever I am there, she seems very excited. And whenever I add her to my content videos, my audiences just go crazy. नमस्कार मी लल्ल्या मैं ना अपने आई बाबा के साथ कपास यानी काटन के खेत में काम करता हूँ। हम वही खेत के पास में एक झोपड़ी में रहते हैं। हमारे साथ मेरे आजोबा, मेरी छोटी बहन छकुली और मेरा छोटा भाई गन्या भी रहते हैं। पहले हमारे साथ मेरी आजी भी रहा करती थी, पर
फिर उन्हें ना वो सांस लेने की जो बीमारी होती है ना, कीटनाशक वाली, वो हो गई। मुझे याद भी नहीं कि मैंने अपने आई बाबा को खाली बैठे कब देखा था। वो वो हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वो खाली कभी बैठते ही नहीं है। इसके वजह से मेरे को और मेरे छोटे भाई बहनों को अकेले रहने की आदत पड़ गई। हम हम घर घर खेलते हैं और हम गुड़िया गुड़िया खेलते हैं। आई बाबा कहते हैं कि हम नीची जाति के है ना, तो इसीलिए हमें ज्यादा काम करना चाहिए दिन भर। हमारे घर में सिर्फ मुझे ही थोड़ा सा लिखना पढ़ना आता है। मैं 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 पहले रोज स्कूल भी जाया करता था, वो बालेवाड़ी शाह उधर। मुझे वहां पे गणित और इतिहास सीखना बहुत पसंद था। फिर एक दिन बाबा आए और उन्होंने बोला कि कल से खेत में काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब भूखे मारे जाएंगे। तो फिर मेरा स्कूल जाना बंद हो गया। स्कूल में एक टाइम का बहुत अच्छा खाने को मिलता था, जो मैं वालों के लिए लेके आ जाता था। एक बार तो हमारे स्कूल में मंत्री जी भी आए थे। उन्होंने हम सबको बहुत सारे वड़ा पाव दिए और उन्होंने हमारे साथ फोटो भी खिंचवाया। फिर फोटो खिंचवाने के बाद उन्होंने वो सब कपड़े फेंक दिए उनके, और उनके सब खाना भी फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे दे देते तो मैं खुशी खुशी ले लेता। मुझे खेलना बहुत पसंद है। हम लोग क्या क्या खेलते हैं पता है? हम गिल्ली डंडा खेलते हैं, और हम लिंगोरचा खेलते हैं, और हम गोटिया गोटिया भी खेलते हैं, और हम आबा आबा धोबी भी खेलते हैं। आबा धोबी के लिए ना हम ऐसे ये कपड़े का बॉल लेते हैं, और उसमें ना हम कपास ठूसते हैं और फिर एक दूसरे को मारते हैं। बहुत अच्छा गेम है। पर ये देखो, आजकल हम इस गेम से खेलते हैं। पता है ये गेम मेरे को कैसे मिली? एक बार ना साहब का बेटा वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो उनकी गेंद आके हमारे पास गिरी। तो मैंने वो गेंद उठाई उनको देने के लिए। तो उनने बोला कि ये भंगी, अब तूने ये गेंद छू ली है तो हम ये गेंद छू भी नहीं सकते। तो मुझे क्या है, मुझे तो बस नई नई गेंद मिली। गेंद तो मिल गई पर खेलने का टाइम ही नहीं मिलता। अपने दोस्तों की बहुत याद आती है मेरे को। वो वो हम बहुत कुछ खेलते थे साथ में। हम ना क्या करते थे पता है? हम लोग चुपचाप से जाके वो जो तालाब है ना पास में, वो तालाब में हम जाके ऐसे डुबकियां लगाते थे। आई बाबा को मत बताना। आई बाबा को बताया ना तो मेरे आजोबा को बता सकते हो। मेरे आजोबा मेरे मनपसंद है। वो मुझे हमेशा हर जगह उनके कंधे पे बिठा के घुमाते थे बचपन से। मुझे ना गन्ने का रस पीना बहुत पसंद है, तो वो मुझे गणेश मंदिर में लेके जाते थे गन्ने का रस पीने को। फिर मैं आजोबा से पूछता था, आजोबा हम गणेश मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते? तो फिर आजोबा बोलते थे कि बेटा हमारे मंदिर अलग होते हैं। फिर मैंने आजोबा से पूछा, आजोबा हम गणेश मंदिर तो, अगर सबके भगवान अगर एक होते हैं तो फिर लोग मंदिर अलग अलग कैसे होते हैं? तो फिर आजोबा ने बोला कि दुनिया में बहुत अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। फिर मैंने उन्हें बोला, आजोबा अगर सबका खून अगर लाल है तो लोग अलग अलग कैसे हो गए? मुझे सबसे पहले इस घर से भागना है। मुझे अपने मर्द से और उसके बेटे से छुटकारा चाहिए, और पानी भरने से भी। मुझे और अब एक दिन भी पानी भरने नहीं जाना। मेरा नाम सोना है और मैं 22 साल की हूँ। जब 18 की थी तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इस गांव में करा दी, एक 65 साल के बुढ़े से। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे थे। पूरे 25,000 लिए उन्होंने मेरे मर्द से। यहाँ आकर मालूम चला कि उसने मुझसे शादी की ताकि मैं पानी भर के ला सकूं। उसकी 2 बीवी और है, एक घर संभालती है, बच्चों को देखती है, दूसरी खेती में उसका हाथ बटाती है, और मैं पानी भर के लाती हूँ। 12 किलोमीटर दूर एक झरना है, उधर से आने के 12 किलोमीटर अलग। रास्ते की थकान तो मैं सह भी लूं, लेकिन हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कोई दबोच ना ले।
गांव के जमींदार और उनके आदमी कभी भी आ जाते और उनके आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। जमींदार लोग तो छोड़ो, उनकी पहली पत्नी का बेटा मुश्किल से मेरे से 2 साल बड़ा होगा, वो भी अपनी गंदी नजरों से देखता है। घर पर तो लिहाज रख लेता है, लेकिन अगर बाहर मिल गई तो वो भी अपने कमीनेपन पर उतर आता है, कमीना साला। और अगर इन सब से बच गई तो मेरे खुद का पति रोज जबरदस्ती करता है। मैं मना करती हूँ तो वही 25,000 उससे। मन तो करता है कि इन सारे मर्दों को पानी में जहर मिला के इन्हें भी मार दो, खुद भी मर जाओ। माफ करिएगा, मैं जरा ज्यादा बोल गई। मैं सच बताऊं तो अक्सर ये सोचती हूँ कि गांव में जो नई टीचर आई है उनसे बात करके यहाँ चापाकल लगवाने की बात उठा, लेकिन मुझे मालूम है कि वो भी 3 महीने में बेकार हो जाएगा। यहाँ पानी नहीं टिकता, इसलिए मैं ये गांव ये घर सब छोड़कर भाग जाना चाहती हूँ। मुझे गांव नहीं रहना, शहर जाना है जहां पानी नहीं भरना पड़े। एक राज की बात बताऊं, मैं पेट से हूं। मुश्किल से 2 महीने हुए होंगे। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस नर्क में पैदा हो। मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, कोई भी काम कर लूंगी। खाना अच्छा बनाती हूँ मैं, सिलाई कढ़ाई भी आती है, ब्यूटी पार्लर का काम सीख सकती हूँ, इंग्लिश भी आती है थोड़ी बहुत। और सच बताऊं तो कोठे पर भी काम कर लूंगी। नहीं, क्या हर्ज है, कम से कम पैसे तो मिलेंगे और कोई रोज जबरदस्ती तो नहीं करेगा। फिर कुछ सालों में कुछ जोड़कर अपनी कोई छोटी मोटी दुकान खोल लूंगी, और अगर कोई ढंग का काम मिल गया तो किसी ठीक ठाक आदमी से शादी कर लूंगी जिसके साथ जिंदगी काट सकूं। इस बार तो अपनी पसंद से करूंगी। मुझे यहाँ से भागना है बस। Hola! Myself Jayant Patel, aka Jean Paul, aka JP. I am an award-winning fashion designer, and I created my own line of fashion designs influenced by the confluence of Indian and Western traditional fashion. I run my own worldwide brand of fashion clothes. I am a self-made man, bole to Atmanirbhar. I have gone through a lot to reach where I am today, which is why many people also call me Jugadu Prime, also an abbreviation for JP by the way. My brand is known for being unique, sustainable and eco-friendly. इधर तक सब सही लगा क्या रे? अरे हाँ रे, ये मीडिया को ये सब चूरन देना पड़ता है, तेरे को पता है ना? अरे नहीं तो वही दिमाग खाते रहते रे। जैसे कि the reason that JP's brand is so affordable is because he uses cheap cotton sourced from farms utilizing child labor. वाह वाह, अरे तुम्हें ही चाहिए था ना सस्ता फैशन, रोज बदलने वाला, तो लो 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 ले आया मैं। क्या करने का यार? अरे आई एम अपने देश में ना एक आदमी एक अच्छा काम करने को जाता है ना 10 लोग उसका पैर खींचते रहते हैं। अरे आई एम इनफैक्ट अ सोशल वर्कर, आई लव टू गिव बैक टू सोसाइटी, आई लव टू हेल्प पीपल। एक बात बता, वो बच्चों को मैं खाना नहीं दिया, मैं ये कपड़ा दिया। क्यों? खाना खाएगा, कितना भी अच्छा खाना हो, आज रात को खाएगा, कल सुबह पेट खाली। कपड़ा कपड़ा सालों साल चलता है, कपड़ा बहुत काम की चीज है। और एक बात बता, अगर मैंने इन लोगों को मैंने इनका पैसे दिए, अगर मैंने इनकी मदद की तो मैंने क्या गलत किया? हाँ, अरे अगर मैं इनकी मदद नहीं करेगा तो कौन इनकी मदद करेगा? हाँ, अरे गरीब भूखा मर जाएगा वो। ये नहीं दिखता मीडिया को, मीडिया को वो सब ही दिखता, चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर। कुछ करना पड़ेगा ये सब साला। ये पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से ना बिजनेस बहुत अफेक्ट हुआ है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। Fuck! 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 Fuck!
কিচ্ছু হবে না এই দেশটা। Just nothing. You know, these people do not deserve a better life. They are born in this gutter and they should die. Fuck. And I've been chasing this fucker stupid Gopal for last 3 days. Literally offering him everything that he needs. Money, power, wealth, whatever. And he's saying no to me. Me, Sam Banerjee. Fuck. And only I know how much I've worked hard, yeah. How much I've worked hard, how much I've literally gone to every investor, every shareholder possible, making them believe that, yes, trust me, I am going to take your business to the next level. Fuck. I'm failing here once again. What? You guys must be thinking that, why am I being so competitive, right? I've got everything, money, power, wealth. That's the problem. When you look at me, you see everything that I have got. When I look at myself, I see the world judging me every single day. Every single day. Last night, something terrible happened. I fought with my parents. They're planning to keep me here forever. I was so mad at them that I got in the car in the middle of the night to go far, far away. Suddenly, it started to rain out of nowhere. It was bad. One wrong turn and my car hits the tree. There was nothing around me, almost like a place where no life exists. After waiting for good 10 minutes, I panicked and started to scream for help. Then I saw a little girl peeping at me from behind the tree. At first, I thought it was a thief or a serial killer. Anything could have happened to me. Then I recognized the face. It was the same whining girl. Seeing me in trouble, she called her gang for help. A bunch of dirty, smelly kids appeared out of nowhere. She said I could stay at her house till the rain stops. House. You call a camping tent your house? There were what? Like 5 things inside that house? Suddenly, the whole village came one by one to stare at me. At first, they were little scared to interact because, after all, I'm their boss's daughter. The roads were broken, so I had to take them. The little mining girl, her name is Kamla, and she called me Gari Didi every time. She was really happy to have me. She got some water for me to clean the mud out of my body. You clean yourself where you sleep? Like, seriously? How am I not sick yet? Though bringing the water was an unnecessary business. The leak was already broken, and the whole camp was on water. So, everything I said amused Kamla. She suddenly touched my hand. I didn't want to touch her back, but somehow I felt connected. Recently, I'm losing many good brands because the production statistics are low. Then I had an idea. Why don't I take her home with me and shoot tons of videos whenever I feel like? After all, whenever I added her to my content videos, my audience has always was attracted towards her. And if I get bored, I can always train her to be my maid. इतनी गर्मी है इधर, कैसे ले लेते हैं लोग इधर? हाँ, ए छोटो, इधर इधर। क्या नाम है तेरा? लल्ल्या। 1 मिनट रुका इधर, 1 मिनट। ये वाला देख रहा है क्या?
दिखने में एकदम मासूम है, एकदम दिखने में एकदम गरीब भी है, और इसका नाम भी काफी रूरल है। ये वाला ना चल जाएगा, ठीक है? तू तैयारी कर जा। क्रू, गेट रेडी टू सेट अप हियर, विल स्टार्ट शूटिंग इन अ बिट, ओके? और लल्ला सर, आइए आइए, बैठिए, इधर ही बैठिए। अरे क्या बात कर रहे हो, बहुत दूर से बहुत नाम सुना हमारा, हमने तुम्हारा। अरे बैठो इधर, बैठो। अरे बेटा, इसको चेयर लगा। हाँ, अरे बैठो और बोलो, कैसे हो तुम? और ये बताओ, यही आसपास रहते हो? अच्छा 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 अच्छा। अपने घर वालों के साथ रहते हो? अपना घर में कौन कौन है और तुम्हारे साथ? इतने सारे लोग रह लेते हो खुशी से? भाई मैं तो अपने घर वालों के साथ इतने टाइम तक नहीं रह पाता। हाँ, और बताओ, और कौन सी क्लास में हो तुम? क्या, स्कूल जाना स्कूल जाना बंद हो गया? करना पड़ता है कभी कभी पेट भरने के लिए ये सब। तुम्हें पता है, मैं भी पवई की एक चौल में रहता था बचपन में। मेरा बाप नशे की लत में डूबा हुआ रहता था, मारता था मेरे को। तेरा बाप तो नहीं करता ना ऐसा? बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू करना पड़ा मेरे को भी। बहुत बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं मैंने। पॉइंट पे आऊं तो बात ये है कि मैंने सुना है तेरे बारे में, तू काम में एक नंबर है कि नहीं बता इसको हितेश। काम में तू एक नंबर है, और तू बहुत चालू भी। तू बाकी बच्चों से काम जल्दी करवाता है कि तुमको खेलने को मिले। अरे क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। एक जुगाड़ू से दूसरे जुगाड़ू को सलाम। अब सुन, अपन तेरे को शहर में लेके जाएगा। वहां पे तुझे क्या करने का है? तुझे सिर्फ लोगों को इतना बोलने का है कि मैं कितना अच्छा हूँ और मैं तुम सब लोगों की कितनी मदद करता हूँ, बस। और कुछ, बस इतना सही चाहिए, बस लोगों को बस इतना बोलने का है और कुछ नहीं। और सुन, तेरे को क्या पसंद है? तेरे को वड़ा पाव खाना पसंद है ना? हे, इसको वड़ा पाव, तेरे को बहुत सारे वड़ा पाव मिलेंगे। और तेरे को चॉकलेट, नए नए कपड़े पहनने को रोज। और क्या, तेरे को स्विमिंग पसंद है ना? वहां पे बड़े बड़े स्विमिंग पूल है, तेरे यहाँ के जैसे, नाले के जैसे नहीं है, एकदम मस्त साफ सुथरे, एकदम शहर में जो चाहिए वो। और क्या पसंद है तेरे को खेलना पसंद है, वहां बड़े बड़े ग्राउंड है, क्रिकेट फुटबॉल जो खेलने का है। और क्या पसंद है तेरे को इसको बोल रहे, इसको तेरे को एक मोबाइल दे देंगे हम, एक 1100 टिका दे इसको, ठीक है? 1100, तू मोबाइल में तेरे को जितना घर वालों से बात करने की है, गेम खेलने का है, जो करने का है कर, बस। लाइफ हो तो ऐसी है कि नहीं? लाइफ हो तो ऐसी, बस। और क्या चाहिए लाइफ में? अब सुन, जरा ध्यान से सोच ले, क्योंकि आसपास में यहाँ पे बहुत सारे लड़के, अगर तू मना करेगा ना तो क्या है, कोई भी तेरी लाइन में जगह ले लेगा। सो ध्यान से सोच, मैं इधर ही छे, ठीक है? मेरे को आराम से बता, ठीक है? चल क्रू, অনেক সময় জীবনে অনেক রকম চয়েসেসের মাঝখানে ফেলে দেয়। अरे आपको नहीं पता कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। बस एक बेहतर कल की उम्मीद में कुछ फैसले कर लेते हो आप। मैंने भी किया। आज मैंने सैम बाबू को मना कर दिया। तो क्यों ना करता? वो मेरे से मेरा आखिरी इज्जत, मेरा मेरा जमीन छीन लिया। मुझे नहीं देना था, मैंने मना कर दिया। अरे मुझे पता है मेरे पास कुछ भी नहीं, ना घर ना पैसा, कुछ नहीं। फिर भी मेरे पास जो है वो मेरा है, मेरा इज्जत। और मैं ये सब जाने देता हूं। पता है गांव वाले ये कहते हैं कि गोपाल हमारा सच्चा दिल का बंदा है। वो कभी भी पैसे के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे जिससे हमारे को नुकसान हो। भालो छेले। और क्या करता मैं पैसे? गया तो था शायद पैसा कमाने। अमीरों ने साला अपने जूते के नीचे मुझे दबा दिया। पैसा पैसा पैसा, अरे अरे दादा नहीं चाहिए ऐसा पैसा। बस 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 बस, नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए।
I saw how Kamla worked hard to make a living. She was like the queen of the ashes. She saw me leaving and came to say goodbye. I said, Kamla, come with me. I'll give you anything you want. Food, clothes, shoes, anything you say. I will change your life forever. But she said no, not now. Not now? Does she know nobody is ever coming for her? Nobody will ever know she exists. These people, these stupid people will always, always stay stupid. नहीं 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 नहीं, मैंने मना कर दिया उन्हें। मुझे बड़ा बोल रही थी कि अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है, पर मेरे लिए नहीं, उनके खुद के लिए। अरे काम देना है तो काम दे ना वो, हम सबको जरूरत है यहाँ। पर वो तो मेरे बहाने मुझसे और यहाँ की सारी औरतों से हमारा पसीना खरीदना चाहते हैं। अरे मैं दुनिया के लिए जो भी हूँ, लोग मुझे जो समझे। ऐसी चीज जो मुझसे हमेशा सच बोलता है मेरा पसीना है, जो मुझे मेरी सच्चाई दिखाता है, मेरे दिन भर की मेहनत का इकलौता गवाह। वो भी उनके हवाले कर दूं, दे दूं उनके कब्जे में। और मुझे मालूम है कि वो अपनी फैक्ट्री में मजदूरों को पानी पीने के लिए भी नहीं देंगे। बोलेंगे या तो अपना लेकर आओ या हमसे खरीदो। और हमारे पसीने पे नहीं रुकेंगे वो, हमारे आंसू भी हम ही से लेकर अपनी कंपनी बनाएंगी और हमें ही पानी के रूप में बेच देंगे। हाँ, पता है, काम बहुत है और 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 खाने को भी कम है और खेलने भी नहीं मिलता और स्कूल भी नहीं जाने मिलता। पर ये गांव ही मेरी दुनिया है दादा। यहाँ मेरे सब दोस्त रहते हैं, यहाँ मेरे सब सब घर वाले रहते हैं। यहाँ पे आई, बाबा, आजोबा, छकुली, गन्या, मोनू, सब कालू, सब। मैंने आपको कालू से नहीं मिलाया ना अभी तक? एक सेकंड, कालू, इधर आ, वो देखो, कालू कितना प्यारा है ना, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये कालू, ये ले। कालू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये दिन भर मेरे साथ ही रहता है। मैं जा जाऊं, ये मेरे पीछे से डुमुक करके आता है। कालू हमारे घर के बाहर सोता है, हमारी रखवाली करता है। और ये देखो, अरे डरो मत, काटता नहीं है ये, इतना प्यारा है ना, देखो कालू। मुझे दिन भर सिर्फ कालू के साथ ही खेलना है। मुझे नहीं करना खेतों में काम, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना है। एक दिन मुझे वापस स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है। जो बीमारी मेरे आजी को हुई थी, वही बीमारी अब आजोबा को हो गई है। अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस बीमारी का कुछ कीजिए दादा। गांव ही मेरी दुनिया है, मैं इसको कैसे छोड़ के जा सकता हूं? अगर आपको कोई बोले तो कि शहर छोड़ के गांव में आ जाओ, तो आप आ पाओगे? कल ना बहुत तेज बारिश हुई। आजकल तो यहाँ झमझमाती बारिश होना आम बात है, पर इतनी बारिश हमारे काम के लिए ठीक नहीं। कोयला सही जगह पहुंचाने में देरी हो जाती है। हम शाम को ना एक पिल्ले के साथ खेल रहे थे, वो पिल्ला दौड़ते दौड़ते सड़क पर पहुंच गया। तभी मुझे कहीं से चीखने की आवाज सुनाई दी। थोड़ा आगे जाकर देखा, एक दीदी अपनी गाड़ी को धक्का मार रही थी। फिर मैंने पहचाना, अरे ये तो मेरी वही गाड़ी वाली दीदी है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था उनको इतने पास से देख पाऊंगी। पर मैंने जब उनका मदद करना चाहा, मुझे देख के चीखने लगी। फिर मैंने भी अपने दोस्तों को बुला लिया। जब वो थोड़ी शांत हुई, हम सब ने मिलकर गाड़ी को धक्का लगाया, पर बात नहीं बनी।
वो पूरी तरह भीग चुकी थी, गाड़ी भी बह गया था। मैंने बोला, मेरे घर आ जाओ। मैं तो बहुत खुश थी, हमारे घर कोई आता नहीं ना। दीदी ना बहुत अच्छी थी, पर बीच बीच में अंग्रेजी में क्या बोल गई, मुझे कुछ नहीं समझ आया। उन्होंने ना खूब बातें करी मेरे से। उन्होंने गिनवाया, कितने शहर देखे हैं, एरोप्लेन में भी बैठी है, 4 अलमारी है कपड़ों के, और 50 से ऊपर जूते। बाप रे! मुझे ना बहुत मजा आया। मैंने अचानक से उनका हाथ पकड़ लिया। इतना मुलायम, सफेद हाथ, साफ नाखून, सुंदर। मेरे हाथ तो उनके सामने कचरा बराबर। मुझे अपने साथ लेके जाना चाहती थी, पर मैंने मना कर दिया। अरे गांव में ना बहुत लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने आते हैं, तो बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, पर कभी कोई वापस नहीं आता। मुझे दीदी पे भरोसा था, कुछ झूठ नहीं बोलूंगी। मैं तो कभी उनके जैसे बन ही नहीं सकती। अगर किसी सच में रहा तो सबको इस गांव से मैं आजाद करूंगी। पता नहीं फिर कभी उनकी मुलाकात होगी या नहीं। कल गाड़ी लेके दिखाएंगे, पर मैं सड़क खुलते ही दुकान वाले चाचा को, स्कूल खुलते ही दोस्तों को,